So students, we are starting with the topic called rotating magnetic field. Rotating magnetic field is a very important terminology in three-phase induction motor, because without rotating magnetic field the rotor won't be able to start. So let us study the definition or some pointers related to rotating magnetic field. Rotating magnetic field, it states that field or flux means it is talking about the magnetic field. So it states that field or flux having constant amplitude but its direction is continuously rotating in a plane at a certain speed. So ये डेफिनेशन जो है ये हम लोग एंड में वापस से रिपीट करेंगे इसको, जब हम पूरा ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लेंगे. बिफोर स्टार्टिंग विद द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मैं पहले ये बता दूँ दैट देर आर 3 सिस्टम्स विच आर वेरी नेसेसरी in electrical in transmitting electrical energies. So there are 3 systems. The first one is generating system, second is transmission system, and third is distribution system. Where generating system is the system where the electricity is generated, transmission system is the system where the electricity is transmitted, and distribution system where the electricity is distributed. So the rotating magnetic field is the concept of three-phase induction motor, but still we are talking about generating system, transmission and distribution to know the depth idea about why we are talking about the rotating magnetic field. So these are the basics. अगर ये हमको समझ में आ गया तो हमको आगे की चीज़ बहुत easily समझ में आ जाएगी. Now let's talk about generating system. Now what is generating system? You can see there are 3 windings. These 3 windings which are connected in star. The first winding is R winding, where second is Y and third is B. These windings are placed 120 degree electrical apart with each other. 120 between R, Y and B there will be 120 degree displacement, and again between B and R 120 degree displacement. Now R is the color coding which is international color coding provided. R means red, Y means yellow and B means blue. These conductors are placed 120 degree electrical apart. If we go clockwise, then we can see that the Y conductor is lagging behind R conductor by 120 degree. B conductor lags behind Y conductor by 120 degree, where this B conductor lags behind by R conductor by 240 degree. Now these conductors are connected inside the generator. Now if अगर मैंने यहाँ इन कंडक्टर्स के ऊपर मैग्नेट्स लगा दिए, आई एम अज्यूमिंग दैट ये सारे मैग्नेट्स जो है ये परमानेंट मैग्नेट है. अगर मैंने ऐसे कुछ मैग्नेट्स यहाँ लगा दिए, ऐसे कुछ मैग्नेट्स, assuming that this is N north pole, this is south pole, this is north and this one is south. Now what will happen? अब मैं क्या करूँगा, as per we are talking about generator, तो these permanent magnets are stationary और ये conductors जो है वो movable part है. मैं क्या करूँगा, इस कंडक्टर को घुमाऊँगा. जैसे मैं इस कंडक्टर को घुमाऊँगा, व्हाट विल हैपन, ये जो तीनों कंडक्टर्स है वो इन परमानेंट मैग्नेट के थ्रू जो प्रोड्यूस्ड होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है उसको कट करेंगे. तो फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, व्हेनेवर कंडक्टर कट्स द फ्लक्स ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इनसाइड द कंडक्टर. सो ये जो कंडक्टर है, दिस कंडक्टर विल कट द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोड्यूस्ड ईएमएफ इनसाइड द कंडक्टर. So EMF which is produced inside the conductor, we have made a waveform of that EMF. Now assuming that now we are considering R as a reference. R को अगर हमने reference consider किया तो मैं R का waveform जो है वो 0 से start करूँगा और मैं इसको बोलूँगा that this is the EMF induced in R conductor ER. सेकेंड वाला जो है, जो Y वाला कंडक्टर है, वो R के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री लेट स्टार्ट होगा अगर मैं कंडक्टर को घुमाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो पहला जो मैग्नेटिक फील्ड वो कट करेगा वो R होगा, सेकंड विल बी Y एंड थर्ड विल बी B.
तो आर जो है वो तो 0 से स्टार्ट हो गया, वाई जो है वो 120 डिग्री लेट स्टार्ट होगा बिकॉज वो आर के रिस्पेक्ट में लैग कर रहा है 120. सो दिस विल बी वाई, EMF इंड्यूस्ड इन वाई कंडक्टर, एंड ये जो होगा इट विल बी EB, EMF इंड्यूस्ड इन बी कंडक्टर. नाउ अगर मैं इनको देखूँ तो यू कैन सी दैट ये वाला जो पॉइंट है इट इज़ एट 0 डिग्री, this is the point, it is of 120 degree, more than 90, so we are considering it as 120. वेर जो थर्ड वेव फॉर्म है वो 240 डिग्री लैग कर रहा है, तो ये वाला जो है ये 180 है एंड ये जो है आई एम अज्यूमिंग इट एज 240. नाउ जब मैं इनको एक्सटेंड करूँगा तो यू कैन सी दैट ये एक्सटेंड होके यहाँ चला गया. ठीक है, जब इसको मैं एक्सटेंड करूँगा तो ये यहाँ से आके ये ऊपर जाएगा, ऐसे कुछ ऊपर चला गया. नाउ ये समझ में आ रहा है दैट यहाँ ये जो पॉइंट है, इफ़ आई एम अज्यूमिंग दिस पॉइंट, ये कुछ थोड़ा सा गलत बन गया, दिस विल बी लाइक समवॉट फ्रॉम दिस एरिया एंड विल गो हियर. तो ये जो पॉइंट है इट इज़ 0 डिग्री, वेर दिस पॉइंट विल बी द 60 डिग्री, आई एम अज्यूमिंग इट एज 60 डिग्री, वेर दिस इज़ 120 डिग्री एंड दिस पॉइंट विल बी द 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री. ओके, नाउ यहाँ हमको ये समझ में आया दैट 3 फेज सप्लाई जो है वो यहाँ से जनरेट हुआ है फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन, एंड दिस 3 फेज सप्लाई इज़ फेड inside the transmission line, which is a very long, like if suppose generating station is 500 kilometer away from the distribution network, so we have to place the transmission system, which is transmission line, through where the electricity is transmitted and will come to the distribution network. Now in distribution network there is 3 phase induction motor connected inside the industry. 3 phase induction motor connected in industry, so we have to feed this supply to the 3 phase induction motor. Now let us see that how 3 phase induction motor will behave. Now talking about 3 phase induction motor, so in 3 phase induction motor, like suppose if we provide 3 phase supply to the 3 phase induction motor, in 3 phase induction motor already there are 3 windings placed. Now assuming स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये बॉटल लिया हूँ, वेर अज्यूम करो दैट ये बॉटल जो है वो 3 फेज इंडक्शन मोटर है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटर पार्ट ऑफ दिस मोटर. अगर आउटर पार्ट की बात करें तो ये जो आउटर सेक्शन है इस मोटर का ये बना हुआ है सिलिकॉन स्टील स्टैंपिंग का. इस आउटर स्ट्रक्चर के इनर वॉल पे, अंदर के इनर वॉल, ये जो वॉल दिख रहे हैं अंदर की तरफ से, इनर वॉल पे हम लोग 3 फेज वाइंडिंग प्लेस्ड करते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, इस बॉटल के इनर वॉल पे वाइंडिंग्स प्लेस्ड करेंगे इन सच ए वे दैट क्या वहाँ 3 वाइंडिंग हो और तीनों वाइंडिंग के बीच में 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट हो. ठीक है, सो मैं क्या करूँगा, यहाँ 3 वाइंडिंग लेके आऊँगा, 3 वाइंडिंग्स which are placed inside or inner wall of a stator with 120 degree electrical apart with each other. ठीक है, so this one is R, this is Y and this one is B. नाउ ये जो वाइंडिंग है ये हमारे मोटर में कनेक्टेड है अभी. सो ऑब्वियसली ये सीधी सी बात है दैट इन टर्मिनल्स पर अब हम लोग सप्लाई फीड करेंगे विच इज़ प्रोवाइडेड बाय MSEB. MSEB को किसने दिया, जनरेटिंग स्टेशन ने दिया. 3 फेज सप्लाई उसने कनेक्ट किया, वो 3 फेज सप्लाई उसने इंडस्ट्री को दिया. इंडस्ट्री में 3 फेज मोटर था, उस 3 फेज मोटर में हम लोगों ने हर एक टर्मिनल पर सप्लाई इंजेक्ट कर दिया. तो यहाँ से सप्लाई इंजेक्ट किया, यहाँ से सप्लाई इंजेक्ट किया, यहाँ से सप्लाई इंजेक्ट किया. नाउ व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ 3 फेज सप्लाई विच इज़ इनसाइड द मोटर राइट नाउ. सो बिकॉज
वी आर फीडिंग सप्लाई इनसाइड द मोटर। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ करंट जाएगा इन वाइंडिंग्स में करंट जाएगा, तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड का वेव फॉर्म जनरेट होगा इन वाइंडिंग्स के अंदर। वी आर टॉकिंग अबाउट RMF विच इज़ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मैं यहाँ वोल्टेज की बात नहीं करूँगा ना करंट की बात करूँगा, अब मैं यहाँ सीधा मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँगा। तो यहाँ क्या होगा अभी, बिकॉज ऑफ द आर कंडक्टर एज पर दिस ऑल वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट, तो मैं सेम वेव फॉर्म बनाऊँगा जैसे मैंने पहले बनाया था। तो वेव फॉर्म विल बी लाइक दिस वे, दिस इज़ the magnetic field or of R waveform. I am donating it as phi r, where second conductor में जो magnetic field developed होगा वो होगा phi y, and third में जो magnetic field developed होगा which will start from 240 degree and it will be phi b. So ये हो गया मेरा phi y and this will be phi b. Now इनकी वेवफॉर्म्स अगर मैंने बना लिया तो इन वेवफॉर्म्स को देख के हम इनके एक्सप्रेशंस भी बहुत इजीली बना सकते हैं। अगर मैं phi r का एक्सप्रेशन लिखने जाऊँ तो phi r विल बी phi m. phi m इज़ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेवफॉर्म, phi m इज़ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, एंड ये जो वेवफॉर्म है ये साइनोसॉइडल वेवफॉर्म है। सो इट विल बी phi r इज इक्वल्स टू phi m साइन टीटा, टीटा ले लो या ओमेगा टी ले लो, इट इज़ वन एंड द सेम। phi y के बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ, phi y इज इक्वल्स टू phi m, अगेन इसका जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट विल बी phi m साइन टीटा माइनस 120 डिग्री, बिकॉज ये वेव फॉर्म जो है वो 120 डिग्री लेट स्टार्ट हुआ है, एंड phi b विल बी phi m साइन टीटा माइनस 240 डिग्री। ठीक है, माइनस 240 डिग्री। अब हम इन वेव फॉर्म्स पे आ जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, इन वेव फॉर्म्स को अगेन एक्सटेंड करता हूँ, तो ये यहाँ आ गया, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ तो ये यहाँ से लेके ये यहाँ चला गया। नाउ मैं क्या करूँगा, मुझे ये देखना है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या बोल रहा है, दैट हमको छोटे टाइम फ्रेम में जो है कंडक्टर्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर क्या है वो चेक करना है। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ इतने पॉजिटिव साइकिल की बात करता हूँ, इस आर कंडक्टर के पॉजिटिव साइकिल की बात करूँगा। तो अगर मैं इतने पॉजिटिव साइकिल की बात करूँ तो यू कैन सी दैट इतने पॉजिटिव साइकिल में ये जो पॉजिटिव साइकिल है इसके अंदर मुझे तीनों फ्लक्स के वेव फॉर्म मिल रहे हैं। तो यहाँ सीधा सीधा ये समझ में आता है दैट आर वाई और बी जो है ये इंस्टेंटेनियस फ्लक्स है, वे इस पॉजिटिव साइकिल के अंदर ही इनका हमको रिजल्टेंट मिलेगा। वह ये वाला जो पॉइंट है मैं कंसिडर करता हूँ टीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ना ये वाला जो पॉइंट है ये इतने पॉजिटिव के अंदर ही आ रहा है, तो मैं इसको कंसिडर करूँगा दैट ये वाला जो पॉइंट है वो टीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है। वेर ये वाला जो पॉइंट है ये भी पॉजिटिव के अंदर आ रहा है, तो मैं ले लूँगा टीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये जो पॉइंट है ये 180 डिग्री एक हाफ साइकिल पूरा कंप्लीट कर रहा है, तो मैं बोलूँगा दिस इज टीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अज्यूम किया मैंने ये 4 पॉइंट, टीटा 0, टीटा 60, टीटा 120, टीटा 180। मैं क्या करूँगा, इन टीटास को इन एक्सप्रेशंस में पुट करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहला टीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री ले लेता हूँ और उस टीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री को इन तीनों एक्सप्रेशन में पुट करूँगा और देखूँगा उनकी वैल्यूज़ क्या। तो इनकी वैल्यूज़ पता करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इनका फेज़र भी बना लेता हूँ। अब फेज़र बनाने के लिए क्या करूँगा मैं, दैट अब मैंने क्या किया, जब मैं इन कंडक्टर्स की बात कर रहा हूँ तो मैंने बोला वाई कंडक्टर जो है वो आर से लैग कर रहा है 120, बी जो है वो आर से लैग कर रहा है 240 डिग्री। बिकॉज ये अगर 120 है तो ऑब्वियसली ये पूरा जो है ये 240 हो जाएगा, बिकॉज ये पी जो है वो आर से लैग कर रहा है। ना आर को मैंने रेफरेंस कंसिडर किया हो, तो जब मैं आर को रेफरेंस कंसिडर कर रहा हूँ और उसके रिस्पेक्ट में मैं वाई और बी को लैग करवा रहा हूँ, तो मैं जब फेज़र बनाऊँगा तो मैं ये बोलूँगा दैट जो फेज़र होगा इसका, जो फेज़र होगा यहाँ, उस फेज़र को मैं लाइक आर वाला फेज़र की अगर मैं बात करूँ, आर वाले कंडक्टर की, तो आर वाला कंडक्टर जो है वो मेरा रेफरेंस है, तो मैं उसको हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड करूँगा। सो मेरा जो
आर वाला कंडक्टर है उसका जो फेज़र होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, तो मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ दैट दिस इज़ फाई आर वाला। फाई वाई जो है वो वाई वाला जो है वो 120 डिग्री लैग कर रहा है, तो 120 डिग्री लैग कर रहा है तो मैंने इसको भी 120 डिग्री लैग करा दिया। दिस इज़ फाई वाई 120 डिग्री लैग, एंड फाई बी जो है वो 240 डिग्री लैग करेगा एज़ कम्पेयर टू फाई आर। सो ये मैंने फेज़र भी बना लिया इसका। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, ये जो टीटास की वैल्यू है जो मुझे मिला है, टीटा इज इक्वल्स टू 0, 60, 120, 180, एक एक करके मैं पुट करता हूँ। टीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री जैसे मैं पुट करूँगा इन तीनों एक्सप्रेशंस में तो मुझे यहाँ वैल्यूज़ निकल के सामने आएगी। तो टीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री अगर मैं पुट कर रहा हूँ इनिशियल केस में, तो यहाँ फाई आर तो 0 हो रहा है, फाई वाई जो आ रहा है वो आ रहा है -√3/2 और फाई बी जो है वो आ रहा है +√3/2 कैलकुलेट करोगे तो यही एक्सप्रेशन तुम लोग को मिलेगा। फाई आर 0 हो रहा है, फाई वाई जो है वो -√3/2 आ रहा है, एंड फाई बी जो है वो +√3/2 आ रहा है। वेर अभी इसके अंदर देखे अगर मैं ये तीनों एक्सप्रेशंस लूँ दैट फाई आर 0 हो गया, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला जो फेज़र है ये एलिमिनेट हो जाएगा और इन दोनों के बीच में मुझे रिजल्टेंट मिलेगा। और यू कैन सी आर वाला 0 हो रहा है और वाई और बी के बीच में अब मुझे क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा, बिकॉज ये तीनों फ्लक्स जो है वो इंस्टेंटेनियस है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉजिटिव साइकिल। सो अब यहाँ अगर मैं फाई वाई की बात करूँ तो यहाँ इनिशियल केस में जो फाई वाई है आप देख सकते हो, यहाँ फाई वाई मुझे नेगेटिव मिला है। मैग्नेटिक फील्ड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव होने के लिए करंट का नेगेटिव होना ज़रूरी है, जो कि पॉसिबल है नहीं। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर नेगेटिव आ रही है तो हम लोग जस्ट उसका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट कर देंगे, मतलब यहाँ जो जा रहा था उसका डायरेक्शन अब क्या हो गया, अपोजिट हो गया, एग्जैक्टली उल्टा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो गया, एंड इसको मैं बोलूँगा दैट दिस इज़ √3/2 फाई एम। फाई वाई है ये, नाउ दिस इज़ फाई वाई। फाई बी क्या है, इसका भी हमको आंसर मिला, ये है √3/2 फाई एम। ठीक है, √3/2 फाई एम, √3/2 फाई एम दोनों की वैल्यू सेम है। अब ये दोनों इंस्टेंटेनियस है तो इनका रिजल्टेंट भी तो हमको मिलेगा ना आगे। यहाँ हमको इसका रिजल्टेंट मिला, एंड दिस रिजल्टेंट विल बी द टोटल फ्लक्स फाई टी। यहाँ हमको इसका रिजल्टेंट मिला एंड दिस विल बी द टोटल फ्लक्स फाई टी, एंड इसकी जो वैल्यू है जब हम सॉल्व करेंगे उसको मैथमेटिकली तो फाई टी की हमको कुछ वैल्यू मिलेगी, बिकॉज फाई वाई की वैल्यू है, फाई बी की वैल्यू है, तो फाई टी की भी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, एंड दैट विल बी 1.5 फाई एम। ठीक है, 1.5 फाई एम आ रहा है। तो यू कैन सी दैट यहाँ हमको दो फ्लक्स के बीच में रिजल्टेंट मिला है, एंड फाई टी आया है वो रिजल्टेंट विच इज़ टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1.5 फाई एम। नाउ ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, बाकी की भी कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ अब टीटा 0 हो गया, टीटा 60 डिग्री ले लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टीटा 60 डिग्री। जैसे ही मैं टीटा 60 डिग्री इन एक्सप्रेशंस में पुट करूँगा तो यहाँ इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3/2 फाई एम। इसकी तो वही आएगी -√3/2 फाई एम, एंड 60 यानी साइन 60 - 240, तो ये साइन 180 हो जाएगा। 180 पे तो साइन 0 होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ तुम लोग देख सकते हो दैट फाई बी जो है वो 0 हो रहा है, एंड ये जो दो है इन दोनों के बीच में मुझे रिजल्टेंट मिलेगा फाई आर और फाई वाई के बीच में। तो मैं क्या करता हूँ, अब प्लॉट कर लेता हूँ यहाँ। तो फाई आर जो है उसकी वैल्यू मुझे मिल रही है, तो मैंने ले लिया फाई आर इज इक्वल्स टू √3/2 फाई एम। फाई वाई जो है वो नेगेटिव मिला है तो उसका डायरेक्शन उल्टा जाएगा, इस तरफ जाएगा, है ना, उल्टा गया, नेगेटिव आया इसलिए। तो दिस इज़ फाई वाई एंड इट इज़ √3/2 फाई एम। अगेन ये भी √3/2 फाई एम है, ये भी √3/2 फाई एम, इन दोनों के बीच में मुझे रिजल्टेंट मिलेगा। ठीक है, ये रिजल्टेंट जो मुझे मिला दिस विल बी फाई टी टोटल फ्लक्स, एंड इट इज़ 1.5 फाई एम
कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा। फिर इस केस में भी देखो, यहाँ इन दोनों की जो वैल्यूज़ थी वो √3/2 थी, इसकी भी √3/2 तो हमको 1.55, यहाँ दोनों की वैल्यूज़ जो है वो हमको 1.55 मिल गई है। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं लेता हूँ थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। थीटा 120 डिग्री जब मैं पुट करूँगा तो थीटा 120 डिग्री यहाँ रख दिया तो उसकी वैल्यू आएगी √3/2 थीटा 120 अगर यहाँ रखता हूँ तो 5i जो है वो हो जाएगा 0, वेर थीटा 120 यहाँ रखता हूँ तो यहाँ मुझे मिलेगा आंसर 120 माइनस 240 तो -120, तो इसका आंसर आएगा -√3/2 तो यहाँ अगेन तुम लोग देख सकते हो दैट कोई एक मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा है और दो के बीच में मुझे रिजल्टेंट मिल रहा है। तो अब मैं यहाँ प्लॉट करना चालू कर देता हूँ। तो यहाँ φr जो है उसकी मुझे वैल्यू मिली है, वो वैल्यू है φr की √3/2 5y जो है वो 0 हो गया तो वो मैं प्लॉट नहीं करूँगा। 5b जो है वो यहाँ मिलता है, ये फेज़र है yb का 5b का, बट अब नेगेटिव आया तो उसका डायरेक्शन में उल्टा कर दूँगा। मैंने डायरेक्शन उल्टा कर दिया, दिस इज़ 5b। अब ये दोनों इंस्टेंटेनियस हो गए हैं, इनका मुझे रिजल्टेंट यहाँ मिल जाएगा और जब मैं रिजल्टेंट निकालूंगा उनका दिस इज़ 5t विच इज़ 1.55m। तो यहाँ क्या समझ में आ रहा है, हर एक इसमें जो टोटल फ्लक्स है वो 1.55 आ रहा है, बिकॉज इनकी जो वैल्यूज़ है फायर और 5y 5b इन सब की वैल्यूज़ जो है वो सेम है। अब जब मैं थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री जब पुट करूँगा तो ये जो वेव फॉर्म दिख रहा है ये जो वेक्टर दिख रहा है तुम लोग को या फिर फेज़र, ये पहले के केस में इट वॉज वर्टिकली अपवर्ड, और जैसे ही मैंने थीटा 60 डिग्री रखा ये जो वेक्टर है ये शिफ्ट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड जैसे ही मैंने थीटा 120 डिग्री लिया ये वेक्टर अगेन शिफ्ट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये देखो, पहले के केस में ये ऊपर था, फिर वो शिफ्ट हुआ क्लॉकवाइज 60 डिग्री से, फिर अगेन ये शिफ्ट हुआ क्लॉकवाइज 60 डिग्री से। जब मैं थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लूँगा तो जैसे ही मैं 180 डिग्री लूँगा ये जो फेज़र है ये शिफ्ट हो जाएगा ऐसे उल्टे डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में, एंड अगेन इनका जो रिजल्टेंट मिलेगा जो 5t होगा वो 1.55 होगा। अब ये चारों केसेस जो है जो हमने निकाले हैं, ये चारों केसेस वो इतने पॉजिटिव साइकिल के लिए निकाले हैं। फिर इतने पॉजिटिव साइकिल में ये जो चारों पॉइंट्स हमने कंसिडर किए उसमें हमने ये देखा दैट ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इनका जो नेचर है ये रोटेटिंग है। मैग्नेटिक फील्ड का जो नेचर है वो कैसा है, वो रोटेटिंग है। नाउ ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये कंटिन्यूसली रोटेट हो रही है। तो अब मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। अगर डेफिनेशन क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट फील्ड और फ्लक्स, सो ये क्या है, ये फ्लक्स है क्योंकि फाई मीन्स फ्लक्स। सो इट स्टेट्स दैट फील्ड और फ्लक्स हैविंग कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, सो यू कैन सी दैट इनका एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। 5t इज़ 1.55m, अगेन सेकेंड वाले केस में 5t जो है वो 1.55m, थर्ड वाले केस में 5t इज़ 1.55m एंड फोर्थ वाले केस में भी 5t 1.55m ही मिलेगा। So it states that field or flux having constant amplitude but its direction is continuously changing. You can see that its direction is continuously changing or rotating in a plane at a certain speed. अब ये घूम रहा है तो उसकी खुद की कुछ स्पीड होगी एंड दैट स्पीड इज़ नोन एज ns. ns का मतलब होता है सिंक्रोनस स्पीड, synchronous, synchronous speed, and this synchronous speed is ns and it is denoted as 120 f by p. Now f is Indian standard frequency and p is number of poles. F is Indian standard frequency, p is number of poles and ns is सिंक्रोनस स्पीड. दिस इज़ द मैक्सिमम स्पीड विच इज़ अटेंड बाय द मोटर एंड ये जो स्पीड है ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड है जो स्टेटर के अंदर है.
मतलब मैं अभी क्या बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस कर रहा हूँ, या मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड को बता रहा हूँ जो सिंक्रोनस मोटर के अंदर है, सॉरी जो इंडक्शन मोटर के अंदर है, स्टेटर के अंदर। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द मोटर।